रिकॉर्ड भी कर लेती हूँ. What is electrical dipole? In today's class, we will be learning about what is electrical dipole. Now, the answer is the electrical dipole. So, I'm going to answer the first question. What is the electrical dipole? A pair of equal and opposite charge which are bounded together, it is called as the electrical dipole. How does it look like? Now, इसकी खास बात क्या होती है? देखिए, यहां पर आपको व्यू में दिख रहा होगा. आई एम जस्ट एक्सपैंडिंग दिस व्यू. You can see that there is a negative charge and a positive charge. Now, I'll make this negative charge as green and the positive charge as red. Now, this is, just a minute. Yeah. Now you can see that this is the positive charge and I've got a negative charge. And what is the khasiyat about these two? The khasiyat about these two is that these two pair of charges are never separated out from each other. They will be together. Now, this will be always existing in pair. What about the magnitude? The two charges should be equal in magnitude and opposite in nature, and they are bounded together, right? Now, if you want to define a dipole, the distance between these two charges should be small. The second is, compared to the that of distance, the charges must be large. Now, can I separate out these two charges? No. In nature, they are bounded together. The pair of equal charges which are bounded together. Now they are inseparable. I cannot separate them. They coexist. दोनों साथ साथ एग्जिस्ट करते हैं. और सबसे बड़ी बात, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहिए, दोनों एक दूसरे से जाके भिड़ जाना चाहिए. ऐसा कुछ नहीं होता. ये कोएग्जिस्ट करते हैं और एक दूसरे को कैंसल नहीं करते, है ना? तो ऐसे कोई अरेंजमेंट नेचर में होता है, किसी सब्सटेंस का बना होता है, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल डाइपोल. एंड दिस इज व्हाट आवर टॉपिक ऑफ टुडे इज. नाउ, फॉर एग्जांपल, सपोज आई हैव गॉट वाटर. वाटर का फॉर्मूला क्या है बोलिए? वाटर का फॉर्मूला होता है H2O. और केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है दो हाइड्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन. और ये सीधा सीधा लंबा थोड़ी होता है भैया. ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन और एक बड़ा सा ऑक्सीजन. आपको पता है हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन मिल करके ये पॉजिटिव बनाएगा और ये ऑक्सीजन नेगेटिव बनाएगा और दोनों कोएग्जिस्ट कर रहे हैं. सो दिस इज अ डाइपोल. वाटर का मॉलिक्यूल अपने आप में एक डाइपोल है. ये दोनों मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं, लेकिन पॉजिटिव चार्ज यहीं कहां होगा और नेगेटिव यहां कहीं होगा. दोनों के बीच में एक डिस्टेंस होगा. दोनों एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे. 2 पॉइंट्स है, इसका मतलब दोनों एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे. तो बोले कि चार्ज तो अलग अलग है. नो, सेंटर ऑफ चार्ज को हम कंसिडर करेंगे. सेंटर ऑफ चार्ज को जब कंसिडर करेंगे तो हम पाएंगे कि ये जो चार्जेस होगा, एक चार्ज इस एंड पर और दूसरे चार्ज यहाँ पर, ये कोएग्जिस्ट करेंगे और दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे. ऐसा अगर अरेंजमेंट हमें मिला तो वो हमारा क्या कहलाएगा? दिस विल बी कॉल्ड एज द डाइपोल. राइट? द फर्स्ट क्वेश्चन इज आंसर्ड नाउ. राइट? Okay, now what is the magnitude? How do I measure the dipole moment? Dipole है भैया, चार्ज है. तो डाइपोल को मेजर करते हैं. देयर इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज कॉल्ड एज द डाइपोल मोमेंट. Now the dipole moment is a vector quantity, and as I told you that in a dipole I've got a negative charge and also I've got a positive charge. These two charges are separated by a fixed distance and this distance I'm taking here at is 2a. We can take it at any distance. D ले सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है. और अगर हमें लेना है डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट को हम लिखते हैं that is equal to P, एक वेक्टर क्वांटिटी, and this is equal to charge multiplied by the
डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। दोनों डाइपोल मोमेंट का होगा charge multiplied by the distance between the charges q, and the distance between them I have taken it as 2a. In all the book it is taken as 2a. We will know the reason why. And we have this charge multiplied by that is equal to qa, and I want, this is the vector quantity. This is the vector quantity. Now, if I say that I have got a vector quantity, I need to mention the direction. Now, if I don't mention the direction, in that case, what we will have here is that it is incomplete, because any of the vector quantity, if you have, I need to write the magnitude as well as the direction. Now, what is the direction? The direction of the dipole moment is always starting from नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर इसका डाइपोल मोमेंट होता है. सपोज इफ आई कॉल दिस नेगेटिव चार्ज का जो पॉइंट है दैट इज ए एंड पॉजिटिव चार्ज का बी. So it is always from A to B, that is from the negative to positive end. What is the direction? It will be, the dipole moment will be always from a negative to the positive चार्ज की डायरेक्शन पे जाएगा, P का डायरेक्शन. राइट, दिस इज व्हाट यू नो नाउ. ओके, नाउ अब बात आती है, क्या डाइपोल इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस करेगा? तो हाँ, है ना, दो चार्जेस है, दोनों मिलकर के फील्ड तो बनाएंगे ना. तो अपन क्या बोलेंगे, डू डाइपोल क्रिएट एन इलेक्ट्रिक फील्ड. तो आंसर क्या लिखूं मैं भैया? अभी गेस. यस, इट विल क्रिएट, बिकॉज इट हैज गॉट वन, नहीं दो चार्जेस पड़े हुए हैं. लेकिन इसमें अपन को वेरियस पोजीशन पे फर्क पड़ेगा कि हमने फील्ड कितना निकाला. ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मुझे समझना है, क्योंकि अब मैं बोलूंगी देयर इज समथिंग कॉल्ड एज द एक्सियल लाइन एंड द इक्वेटोरियल लाइन. तो आपको दो चार्जेस दिए हैं, एक प्लस है और एक माइनस है. ये दोनों मिलकर के डाइपोल बनते हैं, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस बन रहा है, दैट डिस्टेंस एज आई टोल्ड यू दैट इज इक्वल टू हाउ मच? दैट इज इक्वल टू 2a रे बाबा. अब एक्सियल लाइन किसको बोलेंगे? ये दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन. दोनों चार्ज है, दो पॉइंट्स है, दो पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करोगे तो इनका सिर्फ एक सिंगल लाइन बनेगा. ये सिंगल लाइन जो बना आपका, ये आपका एक्सिस कहलाता है. व्हाट इज दिस लाइन कॉल्ड? दिस लाइन इज कॉल्ड एज एक्सिस, एज वी नो इट, है ना. दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है, दैट इज कॉल्ड एज द एक्सिस. ठीक है, अब इस एक्सिस को एक्सटेंड करो, यानी इस चार्ट से बाहर कोई पॉइंट लो, है ना. ये पॉइंट इसी लाइन पर पड़ रहा है, पॉइंट पी. वो लाइन जो ज्वाइन कर रहा है दोनों चार्जेस को, उसी लाइन पर पड़ रहा है. लेकिन अपन ये बोलेंगे कि ये दोनों चार्ज के बीच में कोई पॉइंट नहीं है, बल्कि ये एक्सटर्नल पॉइंट है. ये हमारा एक्सटर्नल पॉइंट बन रहा है दोनों चार्जेस से बाहर, लेकिन उसी लाइन पर, है ना. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज द एक्सियल लाइन. समझ में आ गया सबको यहां तक का? व्हाट इज एक्सियल लाइन? यस मैम. Write Y in the comment box. I should know that. पास इक्वेटोरियल लाइन. इक्वेटोरियल लाइन को बताने के लिए देखो, ये नेगेटिव चार्ज हमारा और ये हमारा पॉजिटिव लाइन, पॉजिटिव चार्ज है. दोनों को जोड़ने वाला एक लाइन. ठीक है, दोनों को जोड़ने वाला जो लाइन का हमको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है. ये ओसी जो है, दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना. अब इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को लेते हुए इस दोनों चार्ज के बीच में एक लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, और ये जो लाइन ए बी और ओ सी, दोनों के परपेंडिकुलर एक प्लेन बनाओ, और ये प्लेन कहलाएगा इक्वेटोरियल प्लेन. देखो 3D में देखो, आप इसको आप 3D में देखो. 3D में देख पा रहे हो ना बेटा? ये दोनों चार्जेस हैं, और ये जैसे मैंने ये नोटबुक रख दिया,
ये नोटबुक ऐसा रहेगा ना, दोनों चार्जेस यहाँ पर मेरे हैं, दोनों चार्जेस यहाँ और यहाँ है, और इसको ऐसा बीच में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाते हुए जो प्लेन जाएगा उसको इक्वेटोरियल प्लेन बोलेंगे। और इस इक्वेटोरियल प्लेन में, मैं लाइन नहीं बोल रही हूँ, प्लीज ध्यान रखिएगा, लाइन नहीं है। इस इक्वेटोरियल पॉइंट में कहीं पर भी तुम पॉइंट्स को ले लो, क्या चार्ज इक्वल डिस्टेंस से जाएगा? प्लेन से दोनों चार्ज की दूरी हमेशा सेम रहेगी कि अलग अलग रहेगी? कहीं पर भी ले लो आप, कोई भी पॉइंट इस इक्वेटोरियल प्लेन पे ले लो, दोनों चार्ज इक्वी डिस्टेंस पे होगा? सोच के देखो आप। हाँ जी, हाँ बोलो, नहीं बोलो? I, yeah. Yes. All of you got this? Yes, yes, yes. Thank you. So you know that this equatorial point जब मैं consider करूंगी, तो I will not consider a single line पर एक point. डेरिवेशन करते समय मैं वही करने वाली हूँ, लेकिन ध्यान रहिएगा कि जब मैं इक्वेटोरियल पॉइंट बोलूं तो वो इस प्लेन पर कहीं पर भी हो सकता है। गॉट दिस? ओके, चलिए, जब हम इक्वेटोरियल पॉइंट और हम एक्सेल पॉइंट समझ गए हैं, तो हम एक काम करते हैं, लेट अस नाउ कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट, यानी कि उसका हम डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, तो डेरिवेशन पहले करने के लिए हम करते हैं एक चार्ज, और इसके पहले हमको लेना पड़ेगा एक लाइन। ठीक, ये लाइन हो गई। तो एज सच हमने कुछ सोच लिया था कि ग्रीन मतलब नेगेटिव और रेड का मतलब हमने ले लिया पॉजिटिव। दो चार्ज आ गए भैया, तो दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रखना है हमें। तो मैग्नीट्यूड सेम रखते रखते तो हमने लिखा यहाँ माइनस क्यू, एक मिनट बेटा, सो माइनस क्यू, और यहां मुझे लेनी है दैट इज इक्वल टू प्लस क्यू। एक्सियल पॉइंट कहां पड़ेगा? तो एक्सियल पॉइंट हमारा ये सीधा पड़ेगा दोनों चार्ज के बाहर। ये पॉइंट मुझे P, और यहां पर मुझे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है। नाउ व्हाट इज P? P इज द एक्सियल पॉइंट lying on line joining two charges. अब पॉइंट P पर कौन कौन फोर्स लगाएगा? पॉइंट P पर कौन कौन चार्ज अपना इन्फ्लुएंस दिखाएगा? तो इसके लिए थोड़ा सा नामकरण कर लेते हैं। मैंने कहा ये पॉइंट A, ये वाला पॉइंट B, और ये पॉइंट का नाम तो हमको पता ही है, दैट इज इक्वल टू C। दोनों चार्ज के बीच में हमने ले लिया 2a का डिस्टेंस। तो अगर मैंने माना कि इस दोनों डाइपोल का जो चार्जेस है, दोनों डाइपोल वाले जो भी चार्जेस हैं, इनका मिड पॉइंट जो है वो O, तो एक बात हमको जानने वाली बात है, मैं यहां पर इसके अंदर लिखूंगी इसको, कि जब भी एक्सियल पॉइंट हो, इक्वेटोरियल पॉइंट हो, या कोई भी पॉइंट हो, तो डिस्टेंस को हमेशा कहां से मेजर करना पड़ेगा? द डिस्टेंस इज ऑलवेज measured from center of the डाइपोल। तो जो भी डाइपोल बना, उस डाइपोल के सेंटर से P तक का डिस्टेंस को मेजर करना, और वो डिस्टेंस जो रहेगी, दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू से R बोलो, है ना? तो अब मैंने कहा कि भैया ये चार्ज जो Q है B पे रखा हुआ पॉजिटिव है ना, और A पे रखा हुआ नेगेटिव चार्ज है, तो क्या B पे रखा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस दिखाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड क्रिएट करेगा? बिल्कुल करेगा भैया। चार्ज है, चार्ज को अकेला मानो, दुकेला मानो, कुछ भी मानो, अकेला अकेला भी
अपना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की वजह से खुद का अलग अलग फोर्स लगाएगा और टोटल फील्ड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने क्या बोला, दोनों फील्ड को जोड़ दो। तो ए फील्ड क्रिएट करेगा, बी भी फील्ड क्रिएट करेगा। देखो लिख देती हूं मैं, ए क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी। कितना, हाउ मच, बोलिए फॉर्मूला क्या था, E at P because of the charge which is located at A, कितना होगा, मैंने क्या बोला था बेटा आप लोगों को इलेक्ट्रिकल फील्ड का फॉर्मूला, K Q divided by distance between the point and the charge, उसका स्क्वायर। फॉर्मूला याद आया, के क्यू डिवाइडेड बाई आर, और सॉरी के क्यू डिवाइडेड बाई एपी का स्क्वायर। मतलब जब भी मुझे फील्ड निकालना होगा, जितने भी हमने अभी तक का प्रॉब्लम्स आपके लिए किया हुआ है, वो प्रॉब्लम्स को हम किस प्रकार से करते हैं, तो हमने लिया डिस्टेंस किस किस के बीच में, हमने लिया डिस्टेंस ए और पी के बीच में, माने चार्ज और जो पॉइंट हमको कंसिडर करना है उन दोनों के बीच में एपी है। अच्छा, तो ओ से लेकर के पी तक का तो बोल दिया भैया आर, और मैंने ले लिया था पूरा डिस्टेंस को 2a, तो ये वाली डिस्टेंस को a और ये वाली डिस्टेंस को भी a। तो क्या मैं के क्यू बाय एपी स्क्वायर को ऐसा लिख सकती हूँ क्या, के क्यू डिवाइडेड बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। Yes, ma'am. अब ये जो डिस्टेंस r प्लस ए क्यों लिया, देखो ये r प्लस ए लिया क्योंकि मैंने बोला देखो 2a लेने नहीं लेती, मान लेती a लेती, तो यहाँ पर जबरदस्ती a बाई 2 आ जाता। तो कैलकुलेशन को अपन को इजी करना है, तो अंकन ने पूछा कि 2a ही क्यों लेते हैं, a क्यों नहीं, x क्यों नहीं, बिल्कुल ले सकते हैं बेटा। कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए दो चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है हमने 2a लिया, फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करने के लिए बस। लेकिन डाइपोल का डेफिनेशन अभी भी वही है, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, 2a ले रहे हैं, राइट, गॉट दिस बेटा। अच्छा, फील्ड है ना, तो फील्ड वेक्टर, वेक्टर है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम तो नहीं बनने वाला, डायरेक्शन बताओ। तो डायरेक्शन, चार्ज रखा ए पर और पी पर फील्ड निकालनी है, तो डायरेक्शन किस प्रकार से जाएगा, तो आप बोलोगे नेगेटिव है ना, तो फील्ड का डायरेक्शन पी से लेकर के ए तक की ओर में जाएगा। तो हमने डायरेक्शन भी आपको लिख के दे दिया, गॉट दिस, yes Yes, ma'am. okay, Yes, now ma'am. A creates a force है ना, now what B creates, B also creates an electric field at P। भैया कितना, तो इसका नाम तो दे दो, E P पे बना B की वजह से, P पे बना किसकी वजह से, B की वजह से, है ना। तो कैसे निकालूं, तो फॉर्मूला तो हमारे पास एक ही है, के चार्ज कितना है यहाँ पर प्लस, Q. तो क्यू ही रहेगा, और डिस्टेंस बिटवीन चार्ज और पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड पॉइंट बोलो dp का स्क्वायर रे बेटा। अब डायरेक्शन लिखना पड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है, तो फील्ड किस डायरेक्शन पे जाएगा, फील्ड का B to डायरेक्शन P. क्या होगा, बी से लेकर के पी तक का जाएगा, है ना। तो आपने यहाँ बीपी का वैल्यू लिख देनी है, तो हमने कहा दैट इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर माइनस ए द होल स्क्वायर। बीपी का वैल्यू क्या है बेटा, बीपी का वैल्यू ध्यान से देखिए कितना आता है, हाँ बीपी का R minus A. आर माइनस ए, देखो ओ से लेके पी तक का आर और ओ बी, दैट इज इक्वल टू ए, तो ये जो ओ बीपी का डिस्टेंस जो है दैट इज इक्वल टू आर माइनस ए, ठीक है। तो अगर इसको मैं एक्स एक्सिस मानूं, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो क्या मैं पी ए, है ना, देखो पी से लेके ए तक का, इसको माइनस आई लिखी तो कोई दिक्कत,
नो मैम। और इसको अगर मैं प्लस आई लिखी तो कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपसे क्या बोला, बोलो। अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अगर एक किसी पॉइंट पर अगर आपको फील्ड निकालना है, द टोटल फील्ड at a point is vector sum of all fields, है ना, यही बोला उन्होंने, है ना। तो वेक्टर फील्ड्स निकालनी है, तो वेक्टर फील्ड्स एक पॉइंट पी, और पी पर कितना फील्ड, दो फील्ड। पी पर कितना फील्ड, डायग्राम देखें, थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ इसको मैं, एक मिनट। दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना। ओके, तो मुझे टोटल फील्ड निकालनी है किस पर, पॉइंट पी पर, है ना। तो कौन कौन क्रिएट कर रहा है वहां पर फील्ड, वो जानना जरूरी है। तो भैया यहाँ पर दो जन फील्ड अपना अपना क्रिएट कर रहे हैं, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। तो दोनों की फील्ड तो आपने अलग अलग निकाल ही रखा हुआ है, वेक्टर सम करना पड़ेगा, है ना। तो टोटल फील्ड एट पी, उसका वेक्टर सम निकालती हूँ, एक आई है दूसरा माइनस आई है। So E at P, that is equal to E at P because of the charge which is located at A, plus the vector sum of vector field at the point P because of the charge which is located at the point P, and I have got PA जो value है, that is equal to KQ divided by R plus A the whole square, लेकिन minus I cap, and plus KQ divided by R minus A the whole square, लेकिन यहाँ पर आपको प्लस आई कैप निकालना पड़ेगा। तो कॉमन जो जो है उसको तो बाहर ही निकाल लो, KQ बाहर, I भी बाहर, और यहाँ आपके पास में बच गया 1 प्लस आर प्लस ए द होल स्क्वायर, ये माइनस, और ये वाला प्लस 1 अपॉन आर माइनस ए द होल स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज। वेक्टर का जो साइन है वो मेरा बाहर आ गया, आई कैप बाहर आ गया। अब इसको सिंपल कैलकुलेशंस करना है, इसमें कौन सी दिक्कत है, के क्यू आई कैप, और यहाँ जो एलसीएम आ जाएगा, एक बार आर प्लस ए द होल स्क्वायर है, एक बार आर माइनस ए द होल स्क्वायर है, तो वैल्यू आएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लेकिन भैया इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या आएगा, इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, नेगेटिव साइन के साथ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar, और साथ में ये आएगा आपका, बीच में प्लस है, और यहाँ आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar, है ना। अच्छा चलो भैया ब्रैकेट खोल लो, और क्या, के क्यू आई कैप डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर द होल स्क्वायर, ब्रैकेट तो खोलिए, माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar प्लस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar द होल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर हो गया, लो प्लस आर स्क्वायर कैंसिल, प्लस माइनस ए स्क्वायर ये भी कैंसिल, है ना। ये डबल क्यों लिख दी मैंने, ये आ गया, ठीक है। अब आ गया आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड एट पी, सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको वेक्टर फॉर्म में मिल गया, कितना मिला, that is equal to KQI cap into 2AR, यहां भी 2AR बच गया, तो 4AR डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। भैया इसको सिंप्लीफाई करने का है, कैसे सिंप्लीफाई करूं, यहां देखिएगा, कुछ तो भी वैल्यूज है, के को लिखो कोई दिक्कत नहीं, इनटू 2QA को इकट्ठे कर लो, आर को यहां लिखो, और साथ में एक और 2 बच जाता है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर द होल स्क्वायर। ऐसा क्यों किया भाई, क्या जरूरत पड़ गई, क्योंकि मेरे को डाइपोल मोमेंट के रूप में लिखना है। ये क्या है, ये किस चीज का फॉर्म है, डाइपोल मोमेंट, है ना। तो इसके बदले मैं क्यों नहीं डाइपोल मोमेंट लिखूं ना, लिख देती हूँ, और क्या। चलिए अब यहाँ पर एक मिनट, सबसे पहले जगह खाली कर लेते हैं, चलो। हाँ ये हो गया अपना
जो वैल्यू ईपी की है ये मेरे को मिल गया। कितना लिख गया यहाँ पर? मुझे पता है कि 2AQ की जो वैल्यू है, एक मिनट, 2QA, ये इसके बदले में मैं P लिख सकती हूँ, तो P डाल देती हूँ। तो फॉर्मूला क्या आ गया? EP का फाइनल फॉर्मूला, अरे आई कैप भी तो है, आई कैप भी है, ठीक है। तो हमने क्या लिखना है? 2 टाइम्स K P R डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, अब इसका होल स्क्वायर। अब ये आ गया मेरा फाइनल फॉर्मूला। समझ गए? एक्सियल Yes, पॉइंट ma'am. पर हमने क्या किया? अरे कुछ नहीं, इतना बड़ा लंबा चौड़ा तुमको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। सारे बायो वाले, सारे मैथ्स वाले, आप एक्सियल पॉइंट की हो या अभी क्लास 12 में इतने सारे जो डेरिवेशंस वगैरह जो आने वाले हैं ना, आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है भैया? इसमें मेरे को फील्ड एट एक्सियल पॉइंट निकालना है। कौन निकालेगा, कौन देगा, बस इतना याद रखना। प्लस क्यू भी निकालेगा, प्लस क्यू अपना फील्ड बनाएगा और माइनस क्यू भी अपना अपना फील्ड बनाएगा। दोनों फील्ड का फॉर्मूला सही डाल करके आप एक्सप्रेशन सही लिख लो। उसके बाद मेरे को एक पता है माइनस आई, दूसरा आएगा प्लस आई, है ना? डिपेंड करता है, जरूरी थोड़ी कि मैंने यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रखा, यहाँ पॉजिटिव, उल्टा भी तो कर सकती हूँ। डिपेंडिंग अपॉन दी पॉइंट और चार्जेस की जैसे भी लोकेशंस होंगे, आपको डायरेक्शन निकाल करके देना है। ठीक है, ये निकाल लोगे आप लोग, कभी भी निकाल लोगे। और उसके बाद सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमसे क्या बोला? मैं एक पॉइंट है, उस पे जितने भी फील्ड लाइंस आएंगे, वो सारे फील्ड्स अगर इकट्ठे आपके पास उसी पॉइंट पर पहुंच रहे हैं, तो इसका आपको वेक्टर सम करने का है। राइट? क्या करेंगे हम लोग? इसका हमको वेक्टर सम करने का है। ठीक है, तो जब हमने बोला कि भाई इसका वेक्टर सम करिए, है ना, तो जब वेक्टर सम करिए तो एक आई है, एक माइनस आई है, जोड़ दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ के बाद आपको रटने वाला प्रोग्राम है ही नहीं है। 9th 10th का मैथ्स लगना है यहाँ पर, और 9th 10th का मैथ्स लगा करके सिंपलीफाई। राइट? ये इतना आता है सबको, सबको अच्छे अच्छे नंबर मिले क्लास 10 के मैथ्स में। ठीक है, तो सबने फटाफट फटाफट जोड़ देना है और ये फाइनल फॉर्मूला आपका आएगा। ठीक, कोई दिक्कत ही नहीं, है ना? लेकिन ये कब है? जब दो जो पॉइंट अपन ने कंसिडर किया वो डाइपोल के कंपैरिजन में पास में रखा हुआ पॉइंट। लेकिन स्पेशल केस हम लोग इसमें एक लेंगे। तो ये स्पेशल केस क्या है? अगर डाइपोल की साइज बहुत छोटी हुई तो, आर अगर बहुत बड़ा हुआ तो स्पेशल केस हुआ ना। तो हम यहां पर एक स्पेशल केस फॉर स्मॉल डाइपोल्स लेंगे। ठीक है, तो स्मॉल डाइपोल्स लेने के लिए क्या करना? ठीक है, डाइपोल छोटा ही होता है ना? तो इसमें मैथमेटिकल कंडीशंस हम क्या लगाएंगे? जो चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है 2a है। चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना है? चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 2a, और सेंटर ऑफ द डाइपोल से जिस पॉइंट पर तुझे फील्ड निकालनी है वो डिस्टेंस है r। अगर स्पेशल केस में हमने कुछ ऐसा लिया, r की वैल्यू a के कंपैरिजन में बहुत बड़ी है, तो हम a को निग्लेक्ट कर दिए। सो E at P यानी एक्सियल पॉइंट पर अगर तुझे निकालनी होगी, 2 तो रहेगा, K तो रहेगा, P तो रहेगा, R तो रहेगा, A स्क्वायर को गायब करना है। तो R स्क्वायर ऑलरेडी था, अब इसका स्क्वायर करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया? 2KPR डिवाइडेड बाय R टू द पावर ऑफ 4। तो R और R टू द पावर ऑफ 4 R क्यूब बच जाएगा। तो हमारे पास इसमें से EP की जो वैल्यू आती है वो आती है 2KP by R क्यूब। साफ साफ समझ में आ गया। EP is directly, नहीं सॉरी, इनवर्सली proportional to R क्यूब। EP is directly, क्या बोल रही हूँ, is inversely proportional to R का क्यूब। आ गया समझ में?
EP is inversely proportionate to R cube और EP के लिए स्मॉल डाइपोल का ये आपके पास में फॉर्मूला हो गया। आ गई बात समझ में? सिंपल एडिशन करना। तुम करती हूँ रिकॉर्डिंग को। मुझे चाहिए डायरेक्शन ऑफ द नेट फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट, राइट? तो एक्सियल पॉइंट पर मुझे अगर फील्ड निकालनी है तो पॉइंट P बना दिया, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज पॉजिटिव वाला ज्यादा पास में पड़ रहा है, तो फील्ड का दिशा ऐसे होगा, है ना? तो फील्ड क्योंकि इसमें ऐसा निकला पॉजिटिव का, डाइपोल मोमेंट का भी कैसे रहेगा? डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन और फील्ड का डायरेक्शन से, डाइपोल मोमेंट और फील्ड का डायरेक्शन से, है ना? सो आप क्या लिखोगे यहां पर? फील्ड इज सेम, direction of field is same as that of dipole moment. इन दोनों का डायरेक्शन सेम होता है। इज दिस क्लियर? आ गई बात समझ में? Yes, ma'am. राइट, ओके। अब चलो, तो तुम लोग Yes, ये बात ma'am. बोलोगे, जरूरी है क्या कि प्लस चार्ज यहाँ रहे माइनस चार्ज ऐसा रहे? उल्टा कर दो ना। कौन बोला उल्टा नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। पॉइंट इधर नहीं हो सकता क्या? सब कुछ हो सकता है। चलो एक एक करके देखो, आप लोग बताओ मेरे को क्या क्या होगा, है ना? आज मैंने क्वेश्चंस नहीं लाई, मैंने आपके इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ, प्रिंटेड क्वेश्चंस नहीं है आज मेरे पास। पॉइंट P को मैंने यहाँ ला लिया, ये आ गया पॉइंट P यहाँ पर। चलो पॉइंट P, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a और सेंटर से लेकर के P तक का डिस्टेंस r। चलो कौन ज्यादा फील्ड लगाएगा? कौन ज्यादा फील्ड लगाएगा? नेगेटिव वाला। नेगेटिव वाला लगाएगा, पॉजिटिव वाला कम लगाएगा। तो ये ज्यादा है तो नेचुरली फील्ड की दिशा ऐसी, फील्ड की दिशा ऐसी। और Yes, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? बोलो, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। नेगेटिव टू पॉजिटिव। यही डाइपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन है, तो क्या ये दोनों सेम हुआ? Yes, ma'am. क्या ई का डायरेक्शन और पी का डायरेक्शन सेम है ना? यस मैम। यहाँ पर डायरेक्शन सेम। हमने ये नहीं बोला कि जो पॉइंट कहीं भी हो सकता, चार्ज कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन निकाल दो तो वही होगा एक्सियल पॉइंट पर। यही चीज आप दूसरा भी कर सकते हो, है ना? चार्ज की पोजीशन को उल्टा कर दो, यहाँ नेगेटिव ले लो और आपने दूसरा एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आप ले लो और दोनों चार्जेस के बीच में एक डायरेक्शन डिस्टेंस डाल दो, दैट इज इक्वल टू 2a और पॉइंट P को यहीं रहने दो, ठीक है? तो पॉइंट P अगर यहीं भी हुआ तो r यहां से है और ये वाला जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 2a हुआ। अब बताओ फील्ड कैसे होगा? इससे ज्यादा है ना, नेगेटिव में ज्यादा फील्ड लगानी है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव है तो नेगेटिव की फील्ड किस डायरेक्शन पे होती है? चार्ज की ओर की चार्ज से बाहर? चार्ज की ओर। चार्ज की ओर, यानी फील्ड का डायरेक्शन ऐसा। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी क्या रहेगा? तो यहां पर भी आपको क्या दिख रहा है? सेम डायरेक्शन। याद रहेगा? तो एक्सियल पॉइंट की जब मैं बात करूं तो जो फील्ड का डायरेक्शन एक्सियल पॉइंट पर वही होगा जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है। ये बात सबको दिमाग में आ जाना चाहिए। यस लिखो कमेंट बॉक्स पर, रिज्यूम नहीं किया। Now what creates the electrical field at the equatorial point? Charges of the dipole. OP को R ले लो, OA OB is equal to A ले लो। नेगेटिव चार्ज रखा गया A पर, तो A पर जो पॉइंट P पर A की वजह से जो फील्ड लाइंस बनेगा नेगेटिव है ना, तो चार्ज की ओर खींचोगे, सिंपल लाइन। बेसिक्स पे जाओ, पॉइंट चार्ज है, इसका मतलब फील्ड लाइंस इसमें से जो भी निकलेगी वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइंस निकलेगी। तो जब मुझे बहुत सारे चार्जेस एक ही पॉइंट के आसपास होंगे तो मुझे फील्ड लाइंस अलग 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 निकालनी पड़ेगी, वेक्टर सब निकालना पड़ेगा। दोनों इकट्ठे, मुझे उससे क्या मतलब? मुझे फील्ड चाहिए सिर्फ चार्ज जो ए पर रखा हुआ है,
वो क्यों है, और इसकी वजह से जो फील्ड लाइंस बनेगी वो लाइन ए और पी को जोड़ करके बनेगी, और फील्ड ई ए की डायरेक्शन, क्योंकि चार्ज नेगेटिव है तो फील्ड लाइंस चार्ज की ओर आएगी, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्शन उसका बता दिया। बी पर पॉजिटिव चार्ज रखा है, उसका भी मैग्नीट्यूड क्यू है ना, और लेकिन इसकी भी फील्ड लाइंस के लिए क्या करोगे आप, बी से पी के लिए एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे, और ये जो स्ट्रेट लाइन है इसकी फील्ड लाइंस जाएगी बाहर, पॉजिटिव की जो फील्ड लाइंस होती है वो बाहर होती है। अब पी पर दो फील्ड दिख रहा है मुझे, ई ए दिख रहा, ई बी दिख रहा है ना, तो ई ए और ई बी जब दिख रहा है तो मुझे वेक्टर सम निकालना पड़ेगा। तो वेक्टर सम निकालने के लिए दो फील्ड है, डायरेक्टली लॉ ऑफ पैरेललोग्राम्स ऑफ वेक्टर डायरेक्शन निकाल, वेक्टर एडिशन लगा दो चलेगा, नहीं तो रिजॉल्व करके ऐड कर लो तो भी चलेगा। तो मैं यहाँ पर रिजॉल्व करके ऐड कर रही हूँ रे बाबा। तो मैंने मान लिया कि ये वाली एंगल थीटा, ये वाली एंगल उसी के इक्वल होगा ना। देखो बेटा ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा और कोई एंगल नहीं बनेगा, ये बनेगा क्योंकि देखो दो साइड्स इक्वल, एक साइड कॉमन, एक एंगल, दोनों एंगल 90 90। तो हमने क्लास 9 में वगैरह में पढ़ा था ना, तो दैट इज साइड एंगल साइड वाला थ्योरम लगा रहे हैं, दोनों जो ट्रायंगल्स है एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट बनेंगे, और दूसरी चीज सीपीसीटी से ये दोनों एंगल्स इक्वल और ये दोनों साइड्स भी आपका इक्वल बन जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए और डिस्टेंस बीपी निकालिए, तो आपको पता है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा। अरे ए पी भी उतना ही डिस्टेंस रहेगा और ये भी कितना रहेगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सिंपल पाइथागोरस थ्योरम हमने लगा लिया, ठीक है। क्या हम मैग्नीट्यूड ऑफ ई ए निकालें? हाँ देखो क्लियर समझो, ई ए सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेगा, तो के लिखोगे, चार्ज की मैग्नीट्यूड लिखोगे, और डिस्टेंस ए से लेकर के पी तक का स्क्वायर निकालोगे, डायरेक्शन बाद में लिखते रहेंगे। तो इसकी वैल्यू इतनी हो गई, तो हमने क्या लिखा, दैट इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसका अपन को स्क्वायर करना है। सो ई ए जो होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा के क्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट का स्क्वायर जो रह करके उसका हट गया, स्क्वायर रूट हट गया, तो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हुआ। अच्छा चलो ई बी कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड निकालो, चार्ज वही, डिस्टेंस भी वही, तो इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ही रहेगा। तो दोनों को क्यों ना मैं ई लिख लूं, चलेगा ना, यस मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। क्लियर, आ गया। तो हमको क्या मिल गया, ई ए का मैग्नीट्यूड बराबर ई बी का मैग्नीट्यूड बराबर सिंपल सा ई, ठीक है। अब क्या करना, दोनों जो वैल्यूज आपकी ई और ई है ना, तो इस ई को हम एक काम करते हैं, हम इसको रिजॉल्व करते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ वेक्टर के जो रेजोल्यूशंस होते थे ना पिछले साल जो हमने किया था, उसको हम लोग करेंगे। तो मैं इसको ब्लैक में कर रही हूँ क्योंकि ब्लैक लाइन से दिखाया है ना, तो इसको मैं ब्लैक से कर रही हूँ। तो ये जो ई ए है इस डायरेक्शन पे गया, तो एंगल तो पहले पता होना चाहिए ना। देखो अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा, ऑल्टरनेट एंगल्स, अगर ये वाली एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स, लाइंस पैरेलल है ना। तो अभी हमने ई का ए का जो रेजोल्यूशन करना है, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी दैट इज इक्वल टू ई कॉस थीटा, और इस दिशा में उसका हो जाएगा दैट इज इक्वल टू ई साइन थीटा। गॉट दिस? ये जो ब्लैक वाली लाइन का यानी नेगेटिव वगैरह, नेगेटिव वाले चार्ज की वजह से जो फील्ड बन रहा है उसको मैंने ब्लैक में रिजॉल्व किया, ई कॉस थीटा एंड ई साइन थीटा। अब मैं ग्रीन में भी रिजॉल्व करूंगी, डार्क ग्रीन ले लेती हूँ, एक मिनट है ना, या सो हमने देखा ई बी ऐसे जा रहा है, देखो ई बी को हमने जब रिजॉल्व किया तो ये हो जाएगा ई कॉस थीटा, और इसका ये ऊपर घेर के जाएगा और ये हो जाएगा मेरा ई साइन थीटा, ठीक है। देखो ये ई साइन थीटा और ई साइन थीटा, देखो जिसको मैंने दिखा मैग्नीट्यूड वाइज सेम लेकिन डायरेक्शन वाइज दोनों कैसे जा रहे हैं, ये दोनों कैसे जा रहे हैं, एक ऊपर एक ऊपर, तो हमने ले लिया प्लस जे कैप, और ये वाला हमारा नीचे जा रहा है
तो क्यों ना हम इसको माइनस जे कैप लिखें। तो क्या ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा? दोनों फील्ड्स जो वेक्टर क्वांटिटीज है दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा। बात समझ में आ गई? वाई डायरेक्शन के दोनों Yes, ma'am. कॉम्पोनेंट है ना, Yes, ma'am. देखो E in the y direction that is equal to E sin theta plus j cap plus E sin theta minus j cap that is equal to 0 वेक्टर हो गया रे बाबा। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर x एक्सिस और इसको y एक्सिस लिया, ये i कैप है और ये j कैप का डायरेक्शन है। अब बताइए ex की वैल्यू कितनी होती है? दोनों किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं? देखो ये वाली वेक्टर और ये वाली वेक्टर, ये भी माइनस आई और ये भी माइनस आई जा रही है, तो इट विल बी इक्वल टू e cos theta minus i cap प्लस e cos theta minus i cap हो रहा है, तो दैट इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ e cos theta into i cap। क्योंकि मैंने यहाँ पर दिखाने के लिए बोला है, आपकी बुक में इसको a b b c कुछ भी लिखा रहेगा, तो उससे मतलब नहीं है, मैंने यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि ये दोनों ऐसे जा रहे हैं। क्लियर? Now what is the total value of the E which is at P? That is equal to EX vector plus EY vector, that is equal to -2 times E of cos theta I cap plus 0। काय को 0 लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, E की वैल्यू मुझे मालूम है। बोल बेटा कितना है? ये निकाल के रखिए अपन, देखो निकाल के रखे ना अपन ने, देखो हाँ? ये वाली वैल्यू को बिठा देना और क्या। हाँ, कितना है ये वाला वैल्यू? ये वैल्यू है दैट इज इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब चलो cos थीटा की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री सबको आता है, बेस बाय हाइपोटेनस होता है ना, तो cos थीटा की जो वैल्यू होगी बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। तो हमने cos थीटा की भी वैल्यू यहाँ पर बिठा दी और ये आ गया a डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी, अब इसको जोड़ के कौन निकालेगा? मैं ही तो निकालूंगी। चलो निकाल दिया, तो E एट P निकालना है, तो ये आ गया माइनस k को अलग रखो और 2QA को एक साथ कर लो और ये आ गया a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर द होल रेज टू द पावर ऑफ 3/2। तो इसको मैं ऐसे नहीं लिखूं रे, 2QA क्या होता है बोलो? ये वैल्यू किसकी है? Dipole. डाइपोल की वैल्यू है ना, तो ले डाइपोल की वैल्यू को मैंने लिख दिया, तो ये जो आ गया ये मेरा आ गया KP डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर द होल रेज टू द पावर ऑफ 3/2 और ये मेरा फॉर्मूला आ गया किसका? किस पॉइंट पर? Equatorial point. इक्वेटोरियल पॉइंट पर आ गया है ना, तो ये आ गई मेरी इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो फील्ड है वो हमने निकाल लिया था। ठीक है, शुभ जायसवाल आर यू देयर? या ठीक है, अब मान लेते हैं स्पेशल केस आएगा, है ना, तो ये स्पेशल केस में क्या आना है अपने पास? स्पेशल केस। तो ये स्पेशल केस में हमारे पास if R is very 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 large as compared to that of A, तो E इक्वेटोरियल की बात करते हैं, so that is equal to A को गायब, है ना, तो क्या आएगा? -KP डिवाइडेड बाय, बोलो R raised to the power of 3/2 था बेटा, तो ये क्या आ जाएगा? R स्क्वायर रेज टू द पावर ऑफ 3/2, 2 कट गया, तो क्या मिला? KP बाय R क्यूब। यहां पर भी आपको क्या मिला? E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r क्यूब। मिला या नहीं? E इक्वेटोरियल इट इज इक्वल टू, बोलो क्या आया? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R क्यूब बेटा। लेकिन
अब अपन को डायरेक्शन बताना है, शो मी द डायरेक्शन, डायरेक्शन की बात करो। चलो डायग्राम में वापस जाओ, या ठीक है अपन एक बार बना लेते हैं इसको, है ना। डायरेक्शन की बात करें, ये मेरा नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव चार्ज था। फटाफट बताएंगे डायरेक्शन, क्योंकि आज का क्लास अभी कंप्लीट करना है मुझे। ये मेरा नेगेटिव चार्ज और ये रहा मेरा दैट इज द पॉजिटिव चार्ज। अब ये दोनों चार्जेस की वजह से जो मैंने फील्ड आपको दिखाया वो फील्ड कुछ इस प्रकार से था, है ना। यहाँ देखिए ध्यान से, नेगेटिव चार्ज की ओर ऐसे आया और ये जो पॉजिटिव वाला चार्ज था उसकी वजह से जो फील्ड बना वो बाहर की ओर गया और हमने देखा कि ये जो फील्ड लाइंस फाइनली जो एक इक्वेटोरियल आई वो इस दिशा में आई, है ना। लेकिन जो डाइपोल मोमेंट की बात करूं तो ऐसा है, मैंने नेगेटिव से निकला और पॉजिटिव की ओर गया, तो ई इक्वेटोरियल, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ई इक्वेटोरियल, ई इक्वेटोरियल and dipole moment are opposite to each other. A very very important, right? So vector addition के लॉज को लगाया और मेरे पास आंसर बन गया. Is this clear? Right. Now I'm going to compare E axial by E equatorial for small dipole. This is a very very important topic. E axial का वैल्यू होता है 2 times of kp by r cube. E equatorial की वैल्यू आ गई, that is equal to kp by r cube. तो आपने kp by r cube कैंसिल कर लिया, तो आंसर कितना आया? 2:1. So this is also a very very important point. तो रिवाइज कर लो, E इक्वेटोरियल और E एक्सियल दो पॉइंट्स को हमने लिया, तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो 2:1 आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप बताएंगे हमने आज क्या क्या पढ़ा, फटाफट देखेंगे। आज हमने इलेक्ट्रिकल डाइपोल्स के बारे में पढ़ा। सबसे पहले सीखा कि व्हाट इज अ डाइपोल, तो आपने बोला पेयर ऑफ टू ऑपोजिट चार्जेस व्हिच आर बाउंडेड टुगेदर, इनको अलग नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल है पानी का मॉलिक्यूल, HCl का मॉलिक्यूल, या कोई भी मॉलिक्यूल आप ले लो, वो सारे डाइपोल्स होते हैं। उसकी मैग्नीट्यूड कैसा होता है, उसका डाइपोल के मोमेंट को कैसे मेजर करूं, तो हमने बोला चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, राइट। चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। वेक्टर क्वांटिटी है भैया डाइपोल मोमेंट, इसकी दिशा होगी नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, राइट। ओके, और डाइपोल मोमेंट क्या अपना फील्ड क्रिएट करेगा? हाँ क्रिएट करेगा, है ना। क्यों क्रिएट करेगा? दो दो चार्ज है, एक चार्ज की बजाय दो दो चार्ज, दोनों चार्ज मिलके अपना अपना फील्ड क्रिएट करेंगे। तो हमने कहां पर लेना है, तो बोले इक्वेटोरियल पॉइंट और एक्सियल पॉइंट। तो सबसे पहले हमने समझा कि एक्सियल पॉइंट क्या होता है, दोनों चार्ज को जोड़ने वाले लाइन को एक्सटेंड करके बाहर ले लो तो वो पॉइंट हमारा एक्सियल पॉइंट होगा। इक्वेटोरियल पॉइंट कहाँ आता है, दो चार्ज है उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ और वहां पर एक प्लेन बना दो, उस पॉइंट पर कोई भी पॉइंट ले लो तो वो आपका इक्वेटोरियल पॉइंट होता है। तो एक्सियल पॉइंट पर हमने फील्ड कैसे निकाली, एक्सियल पॉइंट पकड़ लिया तो दोनों चार्जेस की वजह से अलग अलग फील्ड निकाल लिया, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाया और लगा करके फॉर्मूला को निकाल लिया। और उसके बाद बोला कि अगर डाइपोल बहुत ही छोटा होगा तो फील्ड कैसा होगा डिस्टेंस के कंपैरिजन पे, तो फील्ड ड्यू टू डाइपोल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r³ हमने देखा, ठीक है। अब उसके बाद डायरेक्शन की बात की, एक्सियल पॉइंट पर जिस डायरेक्शन पे डाइपोल मोमेंट गया उसी डायरेक्शन पे हमारा एक्सियल फील्ड भी गया, है ना। और इक्वेटोरियल पॉइंट में क्या हुआ, इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमने दोनों चार्जेस की वजह से फील्ड निकाले, एंगल बना के आया, फील्ड्स को रिजॉल्व किया, है ना, वेक्टर के नियम लगाए और फॉर्मूला हमने निकाल दिया। और यहाँ हमने पाया
कि जो फॉर्मूला छोटे से डायपोल के लिए होता है वो इक्वेटोरियल पॉइंट पर भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है, लेकिन जितना उतने ही डिस्टेंस के लिए एक्सियल फील्ड के लिए होता है वो चीज अगर अपन इक्वेटोरियल पे लेंगे तो 2:1 के कंपैरिजन में 2:1 के प्रोपोर्शनेट में होता है, यानी फील्ड आर डिस्टेंस के लिए एक्सियल में जितना होगा इक्वेटोरियल में उसका आधा होगा। अब बताएं एक सवाल का जवाब, ये सवाल का जवाब ये बताना है आपको कि इक्वेटोरियल पॉइंट और एक्सियल पॉइंट के बीच में जो फील्ड बन रही है दोनों के बीच में कितना एंगल होगा, फटाक से बताओ। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द फील्ड व्हिच इज क्रिएटेड बाय द एक्सियल पॉइंट एंड द इक्वेटोरियल पॉइंट? एक्सियल पॉइंट पे फील्ड और डायपोल मोमेंट सेम है ना, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे ठीक उसका उल्टा, तो दोनों के बीच में एंगल बताओ 180 डिग्री। 180 degree. Now this is what we learned in the class, and now how much did you understand in this class? Put it in the score of 1 to 100% in your comment box, and I'm seeing that, and all 25 students have to give me the comment. Come on,